Hello students, we are seeing class 8 science chapter number 10, that is reaching the age of adolescence, and this is our day 2 of this chapter. Okay, in the previous video we have discussed that the growth of human beings is in 4 steps. Step number 1 is baby, step number 2 is child, step number 3 is adolescent, and step number 4 is adult. Okay, adolescence is what? It is the process child से adult के बीच में conversion की जो process होती है, changing की process, that process is called as adolescence. Adolescence means the process of changing the child's body into adult's body. It includes two types of growths. First is physical growth and second is mental growth. During this process, the child moves in the direction of achieving sexual maturity. Okay, then we have studied the definition of adolescent. What is adolescent? It is a person in whose body the development is taking place or the process of adolescence is going on. This person is also known as teenager. The age of a teenager is in between 10 to 11 years to 18 to 19 years. 13 to 19, these are teen ages. teen है ना लास्ट में, that is why this person is also called as teenager. टीनेजर बोलते हैं हम इसको. ठीक है, गर्ल्स की जो है ग्रोथ एडोलेसेंस की वो स्टार्ट होती है 10 to 13 ईयर्स से एंड बॉयज़ 12 to 14 ईयर्स. और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में ह्यूमन बीइंग की बॉडी में सेक्सुअल मैच्योरिटी आना स्टार्ट होती है, उससे रिलेटेड अलग अलग चेंजेस बॉडी में होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी. ये जो टाइम पीरियड के फॉर्म में प्रोसेस को एडोलेसेंस बोलते हैं, और वो जो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें बॉडी में चेंजेस होना स्टार्ट होता है, दैट टाइम ड्यूरेशन, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज puberty. Okay, the period during which the adolescent reach the sexual maturity, this period is called as puberty. Okay, puberty start in girls in the age of 10 to 13 and in boys it start in the age 12 to 14. Okay, और कब तक ये प्रोसेस चलती है? till the age of 19 years, 18 to 19 years. Okay, these are different changes which takes place in boys during puberty. Number 1 is change in hair, growth of hair on face, on chest. Boys deepened, testes start to produce sperm, testes and penis become larger, chest, shoulder become more broad, body become more muscular, hairs grow in armpits and pubic region, rapid increase in height occurs, and feelings of and sexual drives associated with adulthood begin to develop. Okay, फास्ट इसलिए किया है क्योंकि ये हम ऑलरेडी इसके पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ these are the changes in girl's body. Breast become enlarge and develop, ovaries start to release egg, menstruation start, ovaries, oviduct, uterus, vagina enlarge, hips broaden, extra fat is deposited on hips and thighs, hairs grow in armpits and pubic region, rapid increase in height, and feelings and sexual drives associated with adulthood begins to develop. Okay, now we are going to discuss some of these characteristics in more detail. Okay, changes at puberty. First characteristic जो है that is increase in height. हाइट इंक्रीज होती है किनकी? गर्ल्स की भी एंड बॉयज़ की भी. ओके, सो ये जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी द हाइट ऑफ ए पर्सन इंक्रीजेस वेदर ही इज बॉय और ए गर्ल. हाइट कब तक ग्रो होती है? एक बार अपनी हाइट की ग्रोथ, मतलब चाइल्ड जब रहते हैं तब भी हाइट ग्रो होती है, बट प्यूबर्टी हिट करने के बाद में देयर इज ए रैपिड ग्रोथ. ये जो ग्रोथ है ना हाइट की, ये एकदम से तेज हो जाती है. वी स्टार्ट ग्रोइंग रैपिडली and this growth continues till we achieve the age of 18 years. 18 years और maximum 19 years तक के हम क्या करते हैं, हमारी हाइट बहुत फास्ट ग्रो होती है. आफ्टर 19 years our height do not grow. 19 years में हमने जो हाइट अचीव कर ली, दैट इज अवर मैक्सिमम हाइट. उससे ज़्यादा हमारी हाइट बढ़ सकती है क्या? नॉट पॉसिबल. जो इनिशियल चेंजेस है, प्यूबर्टी
सेट होने के तुरंत बाद पहले 1-2 साल में गर्ल्स की हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है। गर्ल्स 13 ईयर की गर्ल और 13 ईयर का बॉय अगर मैंने कंसिडर किया तो 13 ईयर की गर्ल ज़्यादा हाइटेड होंगी 13 ईयर के बॉय के कंपैरिजन में। बट एज टाइम मूव्स फर्दर जनरली ऑन एन एवरेज बॉयज अटेन मोर हाइट देन ए गर्ल। स्टार्टिंग में गर्ल्स की हाइट ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होती है, आफ्टर दैट इट्स रेट goes slow. Generally, maximum height of girls is less than that of boys. ये जनरलाइजेशन में बॉयज की हाइट गर्ल्स की हाइट के कंपैरिजन में कैसी होती है, ज़्यादा होती है। ओके, सो हमारी हाइट कितनी इंक्रीज हो सकती है, इसका मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम हाइट हमारी कितनी होगी, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं। नहीं तो सारे के सारे बॉयज़ और गर्ल्स एक हाइट के हो जाते हैं, वैसे होता है क्या? नहीं, इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दिस हमारी जो मैक्सिमम हाइट है कितनी बढ़ेगी, दैट डिपेंड्स ऑन अवर जीन्स। हमने हमारे पेरेंट्स से जो जीन्स, कौन से जीन्स कैरी किए हैं, इनहेरिट किए हैं, उसके ऊपर हमारी हाइट क्या होती है, डिपेंड होती है। कुछ लोगों की हाइट ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती, कुछ लोगों की हाइट 6 फीट से भी ज़्यादा चली जाती है। ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड्स ऑन अवर जीन्स और ऑन अवर हेरिडिटी। ठीक है, इसके बाद में भी अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो आप थोड़ी बहुत आपकी हाइट में इंक्रीज क्या कर सकते हो, पॉसिबल है, बट नॉट वेरी। मतलब आपके जीन्स से जो हाइट मिलती है उतने ही तक आपकी हाइट क्या होती है, मैक्सिमम इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखने जैसी ये है कि ग्रोथ इज नॉट इन प्रपोर्शन। ड्यूरिंग टीनेज वी आर टॉकिंग अबाउट, द ग्रोथ इज नॉट इन प्रपोर्शन। हमारे आर्म्स और लेग्स है ना, वो बहुत ज़्यादा हाइटेड हो जाते हैं। आर्म्स मतलब हाथ और पैर की ग्रोथ ज़्यादा, तो ऐसे हमारी बॉडी इन प्रपोर्शनेट दिखती है, ऐसे अजीब से दिखते हैं हम, लेकिन ये बहुत टेम्परेरी सी चीज़ होती है। आफ्टर सम ईयर्स योर बॉडी इज गोइंग टू बिकम प्रपोर्शनेट वंस अगेन। ओके, सो देयर इज नो नथिंग टू वरी अबाउट दिस फैक्टर। ग्रोथ पीरियड है, उसमें थोड़ा बहुत इन प्रपोर्शन आ सकता है, जो बाद में क्या हो जाएगा, बाद में सही हो जाएगा। ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ ए पर्सन इन एडोलेसेंट। क्या देखा हमने यहाँ पे, देखो, increase in height, the height increases in case of both girls and boys. Height grows till 18 years. Initially girls height increases very fast, after that it slows down. Generally maximum height of girl is less than that of boys. Okay, rate of growth is different for different person. It depends on the genes inherited by that person, and the growth is not in proportion. Arms and legs grow faster than rest of the body. मतलब हम एकदम से हाइटेड हो जाते हैं और फिर दुबले पतले भी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी बॉडी जो है वेट वगैरह हमारा उसका उस प्रपोर्शन में इंक्रीज हुआ है क्या? नहीं हुआ। दैट इज वाई द बॉडी लुक्स इन प्रपोर्शनेट। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन बॉडी शेप। जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है आफ्टर हिटिंग द प्यूबर्टी, आवर बॉडी शेप ऑल्सो चेंजेस। मतलब इफ यू आर बॉय देन देर इज ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, चेस्ट वाइड होती है, बॉडी मोर मस्क्यूलर बनती है। हमारे नेक के सामने के हिस्से पर हमारा वॉइस बॉक्स जो होता है उसकी साइज ग्रो होती है, दैट इज कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। देयर इज चेंज इन वॉइस, वॉइस थोड़ा सा ऐसे फटा स्पीकर जैसे बन जाता है ना, वॉइस बिकम्स हार्श। आप जब अडल्ट हो जाओगे तो आपका वॉइस ऐसे नहीं रहेगा, देयर विल बी ए गुड चेंज इन योर वॉइस। लेकिन ये जो प्रोसेस है चाइल्ड से अडल्ट के बनने के बीच में, बच्चों का जो वॉइस होते हैं उनका जो वॉइस है वो चेंज होकर थोड़ा सा रफ बन जाता है, एंड देयर इज डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर। ये जो चेंज इन वॉइस है ये बॉडी के शेप में नहीं आता है ना, दैट इज वाई हमने इसको राउंड किया है। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन लेटर। दीज आर चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ ए बॉय। गर्ल्स के बॉडी में क्या चेंज होता है? हिप्स बिकम ब्रॉडर, waist become more wider, body is less muscular in comparison with boys, and breast develop. There is large enlargement of breast. So these are changes that takes place in the shape of body. Okay. Next characteristic is change in voice. Voice कैसे change होता है? देखो, जो बॉयज़ का जो नेक का सामने वाला हिस्सा जो होता है वहाँ पे हमारा
वॉइस बॉक्स होता है ना. आफ्टर हिटिंग प्यूबर्टी देर इज ए ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स जो है उसका आवाज़ तो उसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी होने लगती है. साइज़ बड़ी होने की वजह से उसका पिच जो है वो कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है. ओके, एंड आवाज़ जो है ये पूरा डेवलप नहीं हुआ है अभी तक, मैक्सिमम साइज उसने अचीव नहीं की है. इस ड्यूरेशन में क्या होता है, आवाज़ आपका कैसे बनता है, हार्श बनता है, रफ बनता है, ऐसे थोड़ा सा फट रहा है आवाज़, ऐसे फील होता है अपने को. ओके, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ एडम्स एप्पल. Next thing, change in voice occurs only in case of boys. There is no change in voice of a girl. Okay. After that, there is one important property we are going to discuss now, is that after hitting puberty there is development of pimples or acne. Pimples पता है ना, जो स्किन के ऊपर जनरली फेशियल रीजन में आते हैं पिंपल्स. पिंपल्स दे आर ऑल्सो नोन एज एक्ने. पिंपल्स एंड एक्ने बोथ आर, एक्ने ज़्यादा सीवियर होते हैं पिंपल्स के कंपैरिजन में. ओके, तो व्हाट आर दे? They are formed due to increased activity of sebaceous gland and sweat gland present in the skin. हमारी जो स्किन है, स्किन में दो तरह की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है. फर्स्ट इज सीबैकस ग्लैंड, जो एक तरह का ऑयली सब्सटेंस सिक्रेट करती है जिसे सीबम बोला जाता है. ठीक है, एंड स्वेट ग्लैंड सिक्रेट स्वेट. दिस टू ग्लैंड्स देयर एक्टिविटीज इंक्रीज आफ्टर हीटिंग प्यूबर्टी. हमारी बॉडी में कई तरह के मीन्स गर्ल्स की बॉडी में 2 और बॉयज़ की बॉडी में 1 टेस्टोस्टेरॉन है ना, और गर्ल्स की बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ये हार्मोन्स जो है ये सिक्रेट होना स्टार्ट होते हैं आफ्टर हिटिंग प्यूबर्टी. एंड बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ दिस हार्मोन्स द वर्किंग ऑफ सीबैकस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड इंक्रीजेस. दे स्टार्टेड टू सिक्रेट मोर ऑयल एंड मोर स्वेट. ओके, इसके वजह से हमारा जो चेहरा है वो स्वेटी बन जाता है, स्वेटी ऑयली है ना. और ये जो है ऑयल है, स्वेट है, देर आफ्टर दैट देर इज डेड स्किन ऑन our body, and because of these 3 things then again there is addition of dust in it. The very small or tiny holes which are present on our skin they get blocked, वो ब्लॉक हो जाते हैं. एंड देयर स्टार्टेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आल्सो. बैक्टीरिया की भी ग्रोथ उसके ऊपर क्या होती है, स्टार्ट होती है. बिकॉज ऑफ विच द स्किन के ऊपर रैशेस आते हैं, स्किन बिकम्स रेडनिंग, स्किन रेडनिंग्स होती है और उसके ऊपर जैसे पिंपल्स ग्रो होना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, दिस इज वन डेवलपमेंट. ये डेवलपमेंट भी जैसे आप अडल्ट बनना स्टार्ट होते हैं, आफ्टर दैट पिंपल्स एंड एक्नेस आल्सो स्टॉप टू अपीयर. कुछ केसेस में ये उसके बाद में भी कंटिन्यू हो सकते हैं. ओके, ये भी क्या है, हमारे ग्रोथ का एक हिस्सा है. इसको अपन निगलेक्ट कर सकते हैं क्या? नो, वी कैन नॉट निगलेक्ट इट. इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअली वो नेचुरल है, आना तो नेचुरल है. हाँ, हम उनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं. कैसे? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस later. Okay, but these are 4 characteristics related to the growth of an adolescent which we have discussed here. होमवर्क में आपको ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल में लिखनी है अपने नोट्स में. मैंने बहुत शॉर्ट में पॉइंट्स मेंशन किए हैं ना, हर चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस की है. यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ and in detailed manner in your notebook. Okay, so this much is sufficient for today. ये 2 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट यू हैव ऑलरेडी रिटन इन योर नोटबुक. ओके, तो ये आपको फिर से नहीं लिखना है. ये सारे नोट्स आपके नोटबुक में लिख लो. बाकी का जो डिस्कशन है, हम बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अदर पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, तब तक के लिए बाय.